Hello students, today we will start the third chapter of Flamingos and the name of the chapter is Deep Water. As its title suggests, this chapter, this story tells us something about water. It is related to water. Deep water, when we speak this word, when we read this word, it seems a little scary. It seems that the water is dangerous because it is deep. The same thing we will read in this chapter. But before we start, we would read about the writer first. So this story has been written by William Douglas. William Orville Douglas. He was born in 1898 and died in 1980. And he was born in Maine, Minnesota. He was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics. So he was a graduate in English and economics. These were the subjects when he studied Bachelor of Arts. After this, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So he spent 2 years as a teacher. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. Means when he got tired of this profession of teaching, his pursue a legal career means he started studying law. He wanted to become a lawyer. And then he met Franklin D. Roosevelt at Yale. He was the president. He met him in Yale and became an advisor and friend to the president. So he became a friend and advisor of President Franklin D. Roosevelt. So if a person gets acquainted with president and president gets so much influenced by that person that he makes him his advisor, you can understand how intelligent, how considerate the person is. So William Orville Douglas was a very considerate person. He was very intelligent. That's why President Roosevelt made him his advisor. Douglas was a leading advocate. Advocate means a person who fights for something, means samarthak. He was a leading advocate of individual rights. So he thought that individual rights should be protected. हर एक इंसान के अधिकार हैं और उनको वो अधिकार मिलने चाहिए. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So for 36 years he remained a justice, and it was the longest service in the world. The following extract excerpt means extract ansh is taken from Of Man and Mountains by William Orville Douglas. William Orville Douglas has written an essay, and the name of the essay is Of Man and Mountains. From that essay, this excerpt has been taken. This extract has been taken from that essay जो हम पढ़ने वाले हैं अभी. पूरा का पूरा ऐसे तो नहीं है, उसमें से एक पार्ट लिया गया है और हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. It discloses how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. विलियम डगलस जब एक छोटे बच्चे थे तो कैसे वो एक पूल में, एक तालाब में डूब गए थे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Overcame means get victory over something. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So, what is the theme of this story? The theme of the story is it is not the death, but the fear of death
that scares one and all मीन्स मौत जो होती है, मृत्यु जो होती है, वो हमें डराती नहीं। मौत, मृत्यु का जो डर होता है ना, वो हमें डराता है। तो दिस इज द फियर, फियर ऑफ डेथ। सो दिस इज द थिंग एंड मैसेज ये है कि अगर कोई इंसान अपने डर पर जीत हासिल करना चाहता है और उसका विश्वास पक्का है, तो वो कर सकता है। जिंदगी में कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है और अगर आपका विश्वास पक्का है खुद पर, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, you are going to achieve it. Let me tell you the summary of the chapter. William Douglas tells us that when he was a child, he had a fear of water. And this fear started when he was a child of 3 or 4 years old. He went to the beach of California. His father was also with him. Both of them were just playing in the surf, means they were playing on the beach, and a wave, a very overpowering wave, came and dipped him underwater. It showed that the wave was more powerful than his father. At that time, William Douglas had a fear of water, and after that, he didn't dare to go near any water body. But this fear spoiled his life, and he wanted to get over from his fear of water. So, what happened? One day, he went to the pool in his town, and the pool was YMCA pool, Young Men's Christian Association's pool. Although there was a river in his town, Yakima, but that river was very dangerous, and his mother always warned him against the river. वो ये कहती थी कि भाई उस रिवर के पास मत जाना, उसमें बहुत ही खतरा है, बहुत सारे लोग उसमें डूब के मर जाते हैं। तो विलियम डगलस पहले ही पानी से डरता था, तो वो उस नदी के बारे पास जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता था। लेकिन उसको स्विमिंग सीखनी थी, क्योंकि वो अपने पानी के डर से उबरना चाहता था। सो ही वेंट टू द पूल दैट वाज इन हिज टाउन एंड ही स्टार्टेड इमिटेटिंग द अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चे वहाँ पर जिस तरह से कर रहे थे, दे वर यूजिंग वाटर विंग्स, दे वर यूजिंग पेडल्स। सो विलियम डगलस ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस, ही ऑल्सो स्टार्टेड imitating them and he started feeling comfortable. उसको लगने लगा कि वो जल्दी ही तैरना सीख जाएगा। But one day when he reached there no one was there at the pool, but he didn't dare to go into the water. जब कोई नहीं था वहाँ पर, तो उसको उसको हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में जाए और स्विमिंग करे। सो ही सेट देयर वेटिंग फॉर अदर्स टू कम। वो वहाँ पर बैठ गया कि और जब बच्चे आ जाएंगे तो वो भी पूल में जाएगा और स्विमिंग करेगा। एट दैट मोमेंट, उसी वक्त वहाँ पर एक 17-18 साल का शरारती सा लड़का आया। वो बिल्कुल रेसलर टाइप का लड़का था, और उसने आते ही विलियम डगलस को पूछा कि भाई तुम किस तरह से गोता लगाना पसंद करोगे। हाई स्किनी, स्किनी इज़ वेरी थिन पर्सन। उसने उसको बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, किस तरह से गोता लगाना पसंद करोगे। और उसने उसको उठा करके, उसके जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और तालाब में फेंक दिया उसको उठा के। और तालाब में भी ऐसे एंड पर फेंका जो गहरा था, यानी कि तालाब स्टार्टिंग में कम गहरा था और जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं तो वो गहरा हो जाता है। तो उसमें 9 फीट जहाँ पर डेप्थ थी, वहाँ पर विलियम डगलस को उसने फेंक दिया। विलियम डगलस स्टार्टिंग में डरा नहीं, उसने सोचा कि मैं पानी के अंदर जाऊँगा, सरफेस जो पूल का है
यानी कि उसकी जो बॉटम है वहाँ पर जा कर के पैर से ज़ोर से छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा और पैडल करते हुए साइड में चला जाऊंगा तैरते हुए। लेकिन उसको नीचे जाने में बड़ा टाइम लगा और वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नीचे पहुंचा। और जब उसने छलांग लगाई नीचे जा कर के, वो धीरे धीरे ऊपर आया। और ऊपर भी जब वो आया तो उसका उसकी सिर्फ आइज और नोज ही ऊपर आए। तो उसने कोशिश तो की उसके हाथ पैर भी ऊपर आ जाए और वो पेडल करे, बट ही कुड नॉट डू दैट। वो कर नहीं पाया और वो वापस नीचे जाने लगा। उसने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस बीच उसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने एक्सप्रेशंस को, जैसे एक ऐसा इंसान होता है जो डूबने वाला होता है या जो कभी डूबा हो, वही उसको समझ सकता है कि उसके दर्द, उसको उसको कितना ज़्यादा उस वक्त डर लग रहा था पानी के अंदर। एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम। उसने अपनी मदर को भी याद किया कि दैट शी शुड बी देयर, वो उसको सेव बचाए आकर के। लेकिन नथिंग हैपन। तो 3 बार ट्राई करने के बाद जब उस वो बिल्कुल थक चुका था, उसके लंग्स जो थे, फेफड़े जो थे, वो बिल्कुल बर्स्ट होने वाले थे, उसकी सांसें बिल्कुल थमने वाली थी, तो उसने अपने एफर्ट्स रोक दिए और वो उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, बेहोश होने वाला था वो। और फिर नेक्स्ट चीज़ जो उसे याद है वो थी, वो पूल के साइड में लेटा हुआ था और वोमिट कर रहा था। किसी ने उसको बाहर निकाल लिया था और उस लड़के को वो डांट रहा था जिसने उसको फेंका था। और लड़के ने ये कहा कि भाई मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। अब इस घटना के बाद विलियम डगलस और भी ज़्यादा डर गया पानी से। वो इतना ज़्यादा डर गया कि पानी के नाम से ही वो सिहर उठता था। कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ वो पिकनिक पे जाता और आसपास कोई झरना भी होता तो उससे भी वो डर जाता। तो कम गहरे पानी में को भी वो लांघने से डरता था। तो इतना ज़्यादा उसके मन में डर बैठ गया पानी के प्रति। और इससे उसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो गई। लेकिन उसने सोचा कि भाई ये तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस पानी के ऊपर मुझे जीत हासिल करनी पड़ेगी। इतना डरता था वो, तो उसने क्या किया, उसने एक कोच हायर किया जो उसको स्विमिंग सिखा दे। और उस कोच ने उसको उसी पूल में जहाँ पर उसको फेंका गया था वहाँ पर ले जा करके डेली उसको प्रैक्टिस कराई और उसको हर तरह की स्विमिंग सिखाई। जितने भी टाइप की स्विमिंग्स होती हैं वो सारी की सारी उसको, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, जो भी जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सभी उसको सिखाई और उसको एक एक्सपर्ट स्विमर बना दिया। अब कोच ने कहा कि भाई नाउ यू कैन स्विम, और मेरा काम ख़त्म हुआ। लेकिन डगलस को लगा कि भाई हो सकता है कि इस कोच के जाने के बाद मैं डर जाऊं। और कोच के जाने के बाद उसने अपने आप को चेक किया पानी में अकेले। जब वो पानी के अंदर था तो उसका वो डर जो मन के अंदर बैठा हुआ था, यही बात तो सिखाना चाहता है कि बचपन का जो डर होता है वो आसानी से मन से निकलता नहीं है, और लेकिन उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब वो पानी के अंदर गया, हालांकि उसका लॉजिकल माइंड उसको कह रहा है कि वो सीख गया है, वो तैर सकता है, बट पानी के अंदर अकेले जब वो था तो उसको डर लगा। लेकिन उसने पूरी हिम्मत के साथ डर के साथ जैसे बात की है, उसको पर्सोनिफाई करते हुए उसने कहा कि भाई तुम मुझे डरा सकते हो, ये लो तुम्हारे लिए मैं तैर के दिखाता हूँ। उसके बाद विलियम डगलस रुका नहीं और उसने ऐसी ऐसी खतरनाक जगह पर जा करके अपने आप को टेस्ट किया कि कहाँ से कितनी ऊंची चट्टान से, पहाड़ी की चोटी से पानी में कूद करके वो अपने आप को प्रूव कर सकता है दैट ही इज़ द बेस्ट स्विमर। और उसने हर जगह पर जा करके, हर खतरनाक जगह पर जा करके कई कई मील तक तैर करके अपने आप को प्रूव किया कि दैट नाउ ही हैज़ कनकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। अपने पानी के डर, पानी के प्रति जो डर था उसने उस पर जीत हासिल कर ली है। और वो यही सिखाना चाहता है इस स्टोरी के थ्रू, अपनी इस खुद की कहानी के थ्रू, कि इस दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। इंसान जो है वो अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से हर एक चीज़ पर जीत हासिल कर सकता है। तो यही मैसेज वो देना चाहता है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए। तो थीम यही है कि बचपन का डर हमें ज़रूर ही ट्रीट करना चाहिए, उसका सलूशन हमें निकालना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर उसका न ख़त्म होने वाला इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है। और उससे हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और हम साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं। तो ये थीम जो है इससे डील कर रहा है राइटर, और ये मैसेज देना चाहता है कि हमें पक्के विश्वास के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड
be determined to get victory over our fear or anything that we want to achieve in our life. So I think it is clear for you, the summary, the theme, and about the writer. And now in next video I would teach you